حلیمہ سعدیہ نے بہت زیادہ ضد کی تو حضرت آمینہ نے بھی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، تم اتنا زیادہ کہہ رہی ہو تو کچھ دن اور اپنے ساتھ میرے بچے کو لے جا سکتی ہو۔ حلیمہ سعدیہ بہت خوش ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گھر آ گئی۔ ایک دن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنگن میں کھیل رہے تھے۔ اس زمانے میں مٹی کے گھر ہوتے تھے۔ حلیمہ سعدیہ اپنا کچھ کام کر رہی تھی اور ان کے شوہر سامنے ایک چرپائی پر لیٹے ہوئے تھے کہ تبھی وہاں سے کچھ یہودی لوگ گزرے۔ انہوں نے جیسے ہی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو تیزی سے چل کر ہمارے حضور کے پاس آئے اور آپ کی آنکھیں بہت غور سے دیکھنے لگے۔ حلیمہ سعدیہ گھبرا گئی کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے میرے بچے کو پکڑ رکھا ہے۔ پھر ان یہودیوں نے حلیمہ سعدیہ سے پوچھا کہ اس لڑکے کی آنکھوں میں یہ لال رنگ کے ڈورے ہمیشہ رہتے ہیں یا کسی بیماری کی وجہ سے ہے؟ حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ ہمیشہ رہتے ہیں۔ پھر ان یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر مہر نبوت دیکھی تو آپس میں کہنے لگے کہ اس بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حلیمہ سعدیہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیے اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی اور راستے میں انہیں برکتیں ہی برکتیں نظر آ رہی تھی۔ محلے کے ہر گھر سے گلابوں کی خوشبو آ رہی تھی اور ہر طرف ایک عجیب سا نور پھیلا ہوا تھا۔ حلیمہ سعدیہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر جب اپنے گھر کو پہنچی تو شام کا اندھیرا ہو چکا تھا۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جیسے ہی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گھر میں داخل ہوئی تو ہر طرف ایک روشنی سی پھیل گئی اور گھر میں خوشبو ہی خوشبو آنے لگی۔ میں حیران تھی کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے گھر اپنی زندگی گزارنے لگے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند ہو۔ جو بھی ہمارے حضور کو دیکھتا تو اپنے دانتوں تلے انگلیاں دبا لیتا۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ہر وقت ایک نور رہتا تھا۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں اپنے گھر میں بیٹھی ایک کپڑا سل رہی تھی۔ اندھیرا بہت زیادہ تھا اور اچانک میرے ہاتھ سے سوئی زمین پر گر گئی۔ میں پریشان ہو کر اسے تلاش رہی تھی لیکن اندھیرے میں مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تبھی اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمرے کے اندر آئے۔ آپ کے چہرے سے ایسا نور نکل رہا تھا کہ مجھے کمرے میں وہ سوئی بالکل صاف نظر آ گئی اور میں نے اسے اٹھا لیا۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے گھر زندگی گزارتے رہے اور حلیمہ سعدیہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلاتی اور انہیں بولنا سکھاتی، ان کی آنکھوں میں کاجل لگاتی، ان کے سر میں تیل لگاتی اور انگلی پکڑ کر انہیں چلنا سکھاتی۔ ان دنوں قبیلہ بنو سعد میں بہت زیادہ غریبی تھی، یہاں تک کہ زمینوں پر گھاس تک نہیں اگتی تھی۔ اس علاقے کے جانور اور بکریاں چرنے جاتے تو شام کو بھوکے پیٹ لوٹتے تھے اور ان کے تھنوں میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہ ہوتا تھا۔ لیکن حلیمہ سعدیہ جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لے کر آئی تھی تو ان کی بکریاں جب بھی چرنے جاتی تو شام کو پیٹ بھر کر واپس لوٹتی۔ محلے کے دوسرے لوگ اپنے چرواہوں پر غصہ ہوتے کہ تم لوگ بھی اپنی بکریاں جا کر وہیں چرایا کرو جہاں حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرتی ہیں۔ محلے والوں کے چرواہے یہی کرنے لگے اور اپنی بکریاں حلیمہ سعدیہ کی بکریوں کے ساتھ چرانے لگے، لیکن پھر بھی پتہ نہیں حلیمہ سعدیہ کی بکریاں تھوڑی سی گھاس کھا کر اسی میں اپنا پیٹ بھر لیتی اور ان کے تھن دودھ سے بھر جاتے، اور دوسرے لوگوں کی بکریاں شام کو بھوکی لوٹتی اور ان کے تھنوں میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہ ہوتا۔ حلیمہ سعدیہ ہر روز اپنے گھر میں برکتیں ہی برکتیں دیکھتی۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت تیزی سے بڑے ہو رہے تھے۔ وہ دوسرے لڑکوں کی طرح دھیرے دھیرے نہیں بڑھتے تھے، یہاں تک کہ 2 سال میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مضبوط لڑکے کی طرح دکھنے لگے۔ حلیمہ سعدیہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر 2 سال کا وعدہ کر کے لائی تھی۔ 2 سال گزر چکے تھے۔ اب حلیمہ سعدیہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کرنے ان کی ماں آمینہ کی طرف چلی۔ حلیمہ سعدیہ کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اپنے اس پیارے بچے کو ابھی اتنی جلدی واپس کروں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ پہنچی اور حضرت آمینہ سے کہنے لگی کہ اے آمینہ، وعدے کے مطابق 2 سال تو گزر چکے ہیں، لیکن میری خواہش ہے کہ میں اپنے اس بچے کو ابھی کچھ دن اور اپنے پاس رکھوں، کیونکہ میں دیکھتی ہوں کہ مکہ میں بہت زیادہ بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے بچے کو کوئی بیماری نہ لگ جائے، اس لیے آپ مہربانی کر کے کچھ دنوں کے لیے میرا بچہ میرے پاس رہنے دیں۔ حلیمہ سعدیہ نے بہت زیادہ ضد کی تو حضرت آمینہ نے بھی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، تم اتنا زیادہ کہہ رہی ہو
तो कुछ दिन और अपने साथ मेरे बच्चे को ले जा सकती हो। हलीमा सादिया बहुत खुश हुई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने घर आ गई। एक दिन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंगन में खेल रहे थे। उस ज़माने में मिट्टी के घर होते थे। हलीमा सादिया अपना कुछ काम कर रही थी और उनके शौहर सामने एक चारपाई पर लेटे हुए थे कि तभी वहाँ से कुछ यहूदी लोग गुजरे। उन्होंने जैसे ही हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो तेज़ी से चलकर हमारे हुजूर के पास आए और आपकी आंखें बहुत गौर से देखने लगे। हलीमा सादिया घबरा गई कि ये कौन लोग हैं कि जिन्होंने मेरे बच्चे को पकड़ रखा है। फिर उन यहूदियों ने हलीमा सादिया से पूछा कि इस लड़के की आंखों में ये लाल रंग के डोरे हमेशा रहते हैं या किसी बीमारी की वजह से है। हलीमा सादिया ने कहा कि हमेशा रहते हैं। फिर उन यहूदियों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर मोहर नबूवत देखी तो आपस में कहने लगे कि इस बच्चे को कत्ल कर दो वरना ये हमारे दीन को ख़त्म कर देगा। हलीमा सादिया उनकी ये बातें सुनकर और बहुत घबरा गई। तभी उन यहूदियों ने हलीमा सादिया से पूछा कि इस बच्चे का बाप कहाँ है। हलीमा सादिया ने फरमाया कि वो सामने चारपाई पर लेटे हैं। ये सुनकर यहूदियों ने कहा कि अगर तू कहती है कि इस बच्चे का बाप मर चुका है तो हम इसे अभी कत्ल कर देते हैं। ये कहकर वो यहूदी वहाँ से चले गए। हलीमा सादिया बहुत ज़्यादा घबरा गई। लेकिन इसी वाक़ये के कुछ ही दिनों बाद हलीमा सादिया के घर के पास से कुछ ईसाई लोग गुजरे। जब उन्होंने हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो वो समझ गए और हलीमा सादिया से पूछने लगे कि ए बीबी, इस लड़के की आंखों में ये लाल डोरे हमेशा रहते हैं या कभी कभी। हलीमा सादिया ने कहा कि हमेशा रहते हैं। तो उन ईसाइयों ने कहा कि ए बीबी, ये लड़का हमें दे दो, हम इसे अपने इलाके में ले जाकर खूब अच्छी तरह पालेंगे क्योंकि ये आने वाली नस्लों का नबी है। ये सुनकर हलीमा सादिया ने फरमाया कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं ये बच्चा मक्का से लेकर आई हूँ और मुझे उन लोगों को वापस करना है। ये सुनकर वो ईसाई वहाँ से चले गए। एक दिन हज़रत हलीमा हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर एक मेले में गई। ये मेला उकाज़ नामी एक बस्ती में लगा करता था। इस मेले में अरब के बड़े-बड़े लोग आते थे और पूरा महीना हर तरफ चहल-पहल रहती थी। हज़रत हलीमा हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर उसी मेले में पहुंची कि तभी एक जादूगर औरत की नज़र हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ गई और उसने चीखते हुए लोगों से कहा कि ए लोगों, इस बच्चे को कत्ल कर दो वरना ये आने वाले ज़माने में तुम्हारे बुतों को गिरा देगा और तुम्हारे दीन को ख़त्म कर देगा। हलीमा सादिया ने जैसे ही ये बातें सुनी तो भीड़ में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर छुप गई। लोगों ने हमारे हुजूर को बहुत तलाश किया लेकिन अल्लाह की मदद की वो लोग हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना पा सके। हज़रत हलीमा तेज़ी से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस लिए अपने घर की तरफ जा रही थी कि उनका गुज़र जिल हिजाज बस्ती से हुआ। यहाँ भी एक मेला लगा हुआ था। उस मेले में हर साल एक बहुत बड़ा जादूगर आकर बैठता था और लोगों को देखकर उसकी किस्मत बताता था। जब हज़रत हलीमा हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर उस जादूगर के पास से गुजरी तो उस जादूगर की नज़र जैसे ही हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी तो उसने चीखना शुरू कर दिया और कहने लगा कि ए लोगों, इस लड़के को मार डालो वरना ये तुम्हारे दीन के मानने वालों को ख़त्म कर देगा और तुम्हारे बुतों को तोड़ देगा और अरब से तुम्हारे बाप दादा की निशानियां ख़त्म कर देगा। ये कहते हुए वो जादूगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झपटा ताकि आपको पकड़कर जान से मार दे, लेकिन उसी वक्त उस पर अल्लाह का अजाब आ गया और वो पागल हो गया। फिर उसी पागलपन में उसकी मौत हो गई। ये सारी चीज़ें देखकर हलीमा सादिया बहुत ही ज़्यादा घबरा गई और उन्होंने घर आकर अपने शौहर को सब कुछ बताया तो वो कहने लगे कि ए हलीमा, मुझे तो इस बच्चे के बारे में अब डर लगने लगा है। तुम जितना जल्दी हो सके इस बच्चे को उसके घर मक्का वापस कर आओ। इस बात को कई दिन गुजर गए। एक दिन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी माँ हलीमा सादिया से पूछा कि ए अम्मी जान, ये दिन भर मुझे अपना भाई अब्दुल्ला और अपनी बहन शीमा नज़र नहीं आती, वो दोनों दिन में कहाँ चले जाते हैं। तो हलीमा सादिया ने बताया कि बेटा, वो दोनों दिन में बकरियां चराने जाते हैं और शाम को वापस आते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अम्मी जान, कल से मैं भी उनके साथ बकरियां चराने जाऊंगा। और फिर अगले दिन से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने भाई बहन के साथ बकरियां चराने जाने लगे। 3 दिनों बाद दोपहर के वक्त अचानक हज़रत शीमा और उनके भाई अब्दुल्ला दौड़ते हुए घर आए और हलीमा सादिया के सामने रोते हुए कहने लगे कि अम्मा जान, हमारे मक्की भाई को 2 लोगों ने पकड़ लिया है और उनका सीना फाड़ दिया है और वो उनके सीने से कुछ निकाल रहे हैं। ये सुनकर हज़रत हलीमा बहुत ज़्यादा घबरा गई और अपने शौहर के साथ जंगल की तरफ भागी।
जंगल में पहुंचकर देखा कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ खड़े हुए हैं और कांप रहे हैं। हुजूर के चेहरे का रंग बदला हुआ था। हलीमा सादिया ने पहुंचते ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गले से लगा लिया और कहने लगी कि ऐ मेरे बच्चे, तुम्हें क्या हो गया? तुम परेशान क्यों हो? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सब कुछ बता दिया कि ऐ अम्मा जान, मैं अकेला यहाँ खड़ा हुआ था कि अचानक दो आदमी आए। उन्होंने सफ़ेद चादर पहनी हुई थी। उसमें से एक ने दूसरे से पूछा कि क्या ये वही लड़का है? तो दूसरे ने कहा कि हाँ, ये वही लड़का है जिसके बारे में अल्लाह ने हुक्म दिया है। और फिर उन दोनों ने मुझे ज़मीन पर लिटा दिया और मेरा सीना फाड़कर अंदर से कोई चीज़ निकाली और उसे फेंक दिया। फिर मेरे सीने को किसी चीज़ से सिल दिया। अम्मा जान, मुझे ज़रा भी दर्द ना हुआ। ये शक्के सदर का वाक़या है कि अल्लाह ने हज़रत जिब्रील और मिकाईल को भेजा था और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर से वो चीज़ें निकलवा दी थी कि जिसकी वजह से इंसान गुनाह करता है और शैतान उस पर हावी होता है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन से ही पाकीज़ा बना दिया गया था। ये सुनकर हलीमा सादिया बहुत ज़्यादा घबरा गई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने घर पहुंची। शौहर ने कहा कि ए हलीमा, अब तुम देर ना करो, बल्कि आज ही इस बच्चे को लेकर मक्का जाओ और इसे इसकी माँ के हवाले कर दो। मुझे डर है कि अब इस बच्चे के साथ कुछ बुरा होने वाला है। हज़रत हलीमा सादिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का की तरफ चल दी। 2 दिनों के सफ़र के बाद वो मक्का पहुंची, लेकिन अभी वो मक्का में दाखिल हो रही थी कि अचानक हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके हाथों से कहीं गायब हो गए। वो बहुत परेशान हो गई। शाम का वक्त हो रहा था और हलीमा इधर-उधर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश कर रही थी, लेकिन कुछ पता नहीं लग रहा था। आखिर परेशान होकर दौड़ती हुई हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंची और कहने लगी कि ए अब्दुल मुत्तलिब, मैं आपके पोते मोहम्मद को वापस करने मक्का आ रही थी कि पता नहीं मक्का के पास अचानक वो कहीं गायब हो गए। मैंने उन्हें बहुत तलाश किया, लेकिन कुछ पता न चला। ये सुनकर अब्दुल मुत्तलिब भी परेशान हो गए और उन्होंने अपने लड़कों को दौड़ाया कि जाओ जल्दी से मक्का में हर तरफ ढूंढो कि मेरा पोता किधर है। जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो कि उसे कोई भेड़िया अपना शिकार बना ले। सारे लोग परेशान होकर हमारे हुजूर को ढूंढने लगे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब काबे में गए और उसका गिलाफ पकड़कर रोते हुए अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह, मेरे पोते मोहम्मद की हिफाजत फरमाना। वो जहाँ भी हो उसे सही सलामत मेरे पास भेज दीजिए। इतनी देर में वर्का बिन नौफल और एक दूसरे आदमी अब्दुल मुत्तलिब के पास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आए और आगे बढ़ाते हुए कहा कि ए अब्दुल मुत्तलिब, ये आपका बेटा है, हमें मक्का के बाहर एक जंगल में मिला था। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गले से लगा लिया और फिर उन्हें लेकर काबे का तवाफ़ करने लगे और अल्लाह से दुआएं मांगने लगे कि ए अल्लाह, मेरे बच्चे की हिफाजत फरमाना। और फिर अब्दुल मुत्तलिब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत आमीना के पास भेज दिया। हज़रत आमीना ने हलीमा सादिया को अपने पास बुलाकर पूछा कि ए हलीमा, तुम इतनी जल्दी मेरे बच्चे को वापस क्यों ले आई? अभी तो कुछ दिनों पहले तुम इतना ज़िद करके मेरे बच्चे को अपने घर ले गई थी। हलीमा सादिया ने फरमाया कि ए आमीना, हमारा आपका वादा 2 साल का हुआ था कि मैं 2 साल इस बच्चे को अपने यहाँ दूध पिलाऊँगी। अब 2 साल गुज़र चुके हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि अब आप ही अपने बच्चे को पालें। हज़रत आमीना समझ गई कि बात कुछ और है, इसलिए कहने लगी कि ए हलीमा, सही-सही बताओ कि असल मामला क्या है? जब हज़रत आमीना ने बहुत ज़्यादा कहा तो हलीमा सादिया ने सब कुछ बता दिया कि कैसे जादूगर ने कत्ल करने को कहा था और यहूदियों ने कत्ल करने की कोशिश की थी और फिर आपके सीने को 2 लोगों ने कैसे फाड़ा था। हलीमा सादिया ये सारी बातें बताती जा रही थी और रो-रो कर कह रही थी कि मुझे डर लग रहा है कि कहीं मेरे इस बच्चे के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। तो हज़रत आमीना ने कहा कि ए हलीमा, क्या तुम मेरे बच्चे पर शैतान से डरती हो कि कहीं शैतान मेरे इस बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचा दे? तो हज़रत हलीमा ने कहा कि हाँ आमीना, मुझे इसी बात का डर है। तो हज़रत आमीना ने फरमाया कि ए हलीमा, ऐसा हरगिज़ ना होगा। जब मेरे इस बच्चे की पैदाइश हो रही थी तो मैंने देखा कि मेरे अंदर से एक नूर निकला है कि जिसने सारी दुनिया को रोशन कर दिया है। और फिर हज़रत आमीना ने दाई हलीमा को पैदाइश के वक्त के सारे मोजिज़े बतलाए और फरमाया कि ए हलीमा, अब तुम जा सकती हो। मैं खुद चाहती थी कि मेरा प्यारा बच्चा अब मेरे पास आ जाए। दाई हलीमा वापस चली गई और फिर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अम्मी हज़रत आमीना के पास ज़िंदगी गुजारने लगे।